अस्सलाम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर का पार्ट ए, जो आपके यूनिट 6 द काइट एंड हिज विजन, द काइट विजन एंड पाकिस्तान का है। इसमें हमसे वो कह रहे हैं कि फाइंड द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स इन द यूनिट। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे वर्ड्स, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब्स के बारे में और इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, जैसे कि कोई काम कैसे हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, किस टाइम पर हो रहा है, कितनी दफा हो रहा है और किस हद तक हो रहा है। ठीक है, इसकी आपको बेसिक समझ तब आएगी जब मैं इसमें इसकी एग्जांपल्स लिखूंगी। अब हम पैसेज को एक दफा फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें उसमें से कौन कौन सी एडवर्ब्स मिलती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमरजेंस, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना undertook a country-wide tour। अच्छा, अब इस सेंटेंस में पहला हमारे पास जो पहली एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो कि आ गया था अर्ली। अर्ली यानी कि जल्दी और शुरू के, इब्तिदाई। और दूसरा एडवर्ब हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि इसमें आएगा कंट्री वाइड। कंट्री वाइड। अच्छा, आगे इसको पढ़ते हैं। He aimed at raising people's spirits. Do not be overwhelmed with the enormity of the task, he said in a speech at Lahore. There are many examples in the history. अच्छा, at Lahore भी जो है ये एक एडवर्ब है, लेकिन ये एक एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि at Lahore दोनों मिलके एक एडवर्ब फ्रेज बनाते हैं। तो हम सिर्फ एडवर्ब देखें, हम इसमें फ्रेजेस नहीं देखते। फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब में क्या फर्क है? एडवर्ब फ्रेज में एक से ज्यादा अल्फाज होंगे जो हमें जगह या टाइम का बताएंगे, और एडवर्ब एक ही लफ्ज होगा जो हमें इन सारी चीजों के बारे में बताएगा। ठीक हो गया? अच्छा, there are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. You are made of sterling material and second to none. Keep up your morale. Do not be afraid of death. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. Bravely जो वर्ड है वो आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर में, कि किस तरह से कोई काम किया जा रहा है, बहादुरी के साथ किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं। Do your duty and have faith in Pakistan. It has come to stay. फिर आगे है the entire journey of the great leaders struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and the oneness as a nation. He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. इसमें कोई एडवर्ब नहीं आ रहा, आगे पढ़ते हैं इसको। We as a nation, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan. Before आ रहा है, before है हमारा adverb of time. Before the birth of Pakistan, with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and traditions, aptitude and ambition. In short, we have our own distinctive outlook of life. No adverbs. अगला पैराग्राफ हमारा है The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. Strongly हमारा adverb of manner है, यानी कि मजबूती के साथ। Quaid-e-Azam was a man of strong faith and belief. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan, based on the Islamic principles, would reform the society as a whole. अच्छा, इसमें firmly word आ रहा है। firmly भी हमारा है adverb of manner। आगे देखते हैं, आगे इसमें है
In his Eid message, September 1945, Quaid-e-Azam said, Islam is a complete code of life, regulating the whole Muslim society, every department of life, uh, collectively and individually. Collectively and individually हमारा आ जाएगा adverb of degree. मैं बताती हूँ क्यों, पहले लिखे थे collectively, individually. अच्छा, collectively का मतलब है पूरी तरह से, तो हमें पता चलता है डिग्री क्या है. डिग्री से मुराद है किस हद तक, किस लेवल पे, पूरी तरह से, कलेक्टिवली और इंडिविजुअली इंफरादी तौर पे, कि एक इंसान, यानी एक इंसान को भी ये ठीक करेगी और बेहतर बनाएगी और पूरे मुल्क को, पूरी नेशन को, पूरी कौम को भी बेहतर बनाएगी. तो ये हमें डिग्री की समझ आ रही है यहाँ पे. अच्छा, आगे टुडे द टाइप पाकिस्तान इज फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस. टुडे हमारा आ जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम में. ठीक हो गया, आगे देखते हैं. We have forgotten how much struggle the Muslims had made under the dynamic leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. We can overcome our present difficulties by following the Quaid's golden motto: faith, unity, and discipline. We can make our nation strong by remembering his advice to the youth. It is now up to you to work, and we are bound to succeed. अच्छा, ये हमारा पूरे चैप्टर के एडवर्ब से. अब इसमें इन्होंने जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है वो इसमें तो दिया है, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इसका क्या मतलब है. फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी दफा होता है. फ्रीक्वेंसी यानी कि रोज होता है, कभी कभी होता है, अक्सर होता है. इसके लिए जो वर्ड्स आ जाएंगे, डेली आ सकता है, डेली, समटाइम्स और ऑफन, यूजुअली. ठीक हो गया, ये आपके वर्ड्स हैं, एडवर्ब्स हैं फ्रीक्वेंसी के. अगला जो हमारा पार्ट है वो पार्ट बी है, और इसमें देखते हैं कि हमें क्या करना है. पार्ट बी में हमने ये करना है कि हमने सेंटेंसेस बनाने एडवर्ब्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड मैनर से. ठीक है, पहला हमारे पास वर्ड है प्रेजली, जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है. इसके लिए सेंटेंस यूज कर सकते हैं. He faced all the challenges bravely. यानी कि उसने तमाम चैलेंजेस का सामना बहादुरी से किया. firmly the teacher firmly told the class to be quiet. यानी कि टीचर ने सख्ती से क्लास को कहा कि खामोश रहें, सख्ती से जमात को कहा कि खामोश रहें. Today I am not going to school today. यानी कि मैं आज स्कूल नहीं जा रहा. अर्ली का मतलब है जल्दी. Hina told me to come to school early so that we can practice for the test. यानी कि हिना ने मुझे कहा कि स्कूल जल्दी आ जाओ ताकि हम टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकें. ठीक है, हिना told me to come to school early so that we can practice for the test. आगे है कंट्री वाइड. The virus spread countrywide rapidly.
ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब कि वायरस पूरे मुल्क में बहुत जल्दी से फैल गया। ये आपके हैं एडवर्ब्स के सेंटेंसेस, इनकी प्रैक्टिस करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।